تبدیلی سرکار آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کی پالیسی پر گامزن، سابقہ دور حکومت نے منصوبے مکمل کرنا بھول گئی ہے۔ صاف پانی اور سیوریج منصوبے بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں سیکریٹریز کی عدم تعیناتی سے تعمیراتی کام شدید متاثر ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگنے سے عوامی مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات محسن ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جنوبی پنجاب میں ترقی کا پہیہ تھم سا گیا ہے۔ شہر اولیا میں میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا منصوبہ 3 سال سے مکمل نہ ہو سکا، جبکہ وہاڑی روڈ ڈبل کرنے کا منصوبہ کئی سال سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا۔ غیر یقینی صورتحال سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشن میں وعدے کرنے والے کہاں غائب ہیں۔ ملتان میں یہ منصوبہ چل رہا ہے اور اس کو جو ہے نا جلد سے مکمل ہونا چاہیے تاکہ مریضوں کے لیے سہولت مل جائے۔ بلڈنگ میں بھاجن جلدی تیار ہونی چاہیے، یہ کام جلدی ہونا چاہیے، ادھر رش ہوتا ہے بہت زیادہ اور ادھر کام ہونا چاہیے جلدی۔ ملتان شہر میں سابقہ دور کا ہیڈ ڈمرا تا عسکری بائی پاس روڈ، شجاباد تا جلال پور روڈ وائڈنگ منصوبہ اور پل واصل تا رضا آباد منصوبہ گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہیں۔ حکومت کی غیر سنجیدگی کے باعث جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں سیکٹریز تعینات نہ ہو سکے، جبکہ سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے ٹینڈرز اور ورک پرمٹ کے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 اضلاع اور 36 تحصیلوں میں صاف پانی اور سیوریج کے منصوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مریضوں کے لیے بڑی خواری ہوتی ہے، ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا۔ کارڈیالوجی کا حکومت پاکستان کو یا حکومت پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پر کام شروع کروایا جائے۔ تبدیلی سرکار کا صحت کے میدان میں تبدیلی لانے کا اعلان محض اعلان تک ہی محدود ہے۔ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیعی منصوبہ 8 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کا منصوبہ غیر فعال، جبکہ نشتر اسپتال کے کینسر وارڈ کا توسیعی منصوبہ اور نشتر اسپتال کا فارمیسی بلاک فنڈز کی عدم فراہمی کا شکار ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی موجودہ حکومت گزشتہ حکومتوں کے ادھورے منصوبے بھی 3 سال میں مکمل نہیں کر سکی۔ باقی کی کسر موجودہ سیکٹریٹ میں کئی سیکٹریز تعینات نہ کر پوری کر دی گئی، جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے اندر ہونے والے ترقیاتی کاموں کو بریک لگی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ محسن ملک، ملتان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بہاولپور ملک محبوب الہی خور کہتے ہیں بہاولپور میں سابق حکومت کے روکے گئے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محمود ظہیر۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب الہی خر کا کہنا تھا کہ بہاولپور میں سابق حکومت کے روکے گئے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 2020-21 میں ضلع بہاولپور میں جو گرانٹ دی گئی وہ 3.5 ارب روپے کی ٹوٹل گرانٹ تھی، جن میں سے 86% کام مکمل کیا گیا اور جو 14% کام جن فنڈز لیپس ہوئے وہ کچھ تکنیکی بنیادوں پہ کہ لاسٹ منتھ میں ریلیز ہوئے اور ٹیکنیکل بیسس پہ ان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ ملک محبوب الہی خر کا مزید کہنا تھا کہ آخری فنانشل سال میں بھی صرف 86% کام مکمل کیے گئے۔ اس حکومت نے پچھلے تمام جتنے بھی منصوبے تھے ایک کلیکٹیو پالیسی کے تحت ان کو ٹیک اپ کر لیا ہے، جس میں سے جہانگی والا روڈ بھی ہے اور اس کی ریپیئر اس سال منظوری ہو چکی ہے اس کی۔ اسی طرح تھیلیسیمیا سینٹر ہے یہاں پہ، اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے۔ بون میرو سینٹر ہے یہاں پہ، ایمرجنسی ہے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں، اس میں فنڈز کی گرانٹس بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں اور انشاءاللہ جلدی کام شروع ہو جائے گا۔ بہاولپور میں بون میرو اور تھیلیسیمیا سینٹر، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل میوزیم اور نرسنگ ہاسٹل پر کام جاری ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ تبدیلی سرکار نے سیاسی مخالفت میں تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ میاں والی میں بھی سابق حکومت کے ترقیاتی منصوبے ٹھپ ہو گئے۔ منصوبوں کی بروقت تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میاں والی میں سابق دور حکومت میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے نظر انداز۔ جہاز چوک تا سراب والا روڈ کا کام 2017 میں شروع ہوا۔ 2 سال میں مکمل ہونے والا منصوبہ تاحال نامکمل ہے۔ منصوبہ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہونا تھا۔ 2017 تو روڈ پٹا ہے اور میرا یاد خان پٹوائے بے ڈبل پہ کرے نا، لیکن پتہ نہیں پٹ کے سٹ کے لگے گئے تے نا سوان والی پولیس تک ڈبل روڈ آ گئی۔ پتہ نہیں یہ سارے سیاسی ہیں کیری شے ہیں، انہوں کو اپنے ضلع تک کترا ہی خیال نہیں آتا۔ کتنے پہلے کال ٹائم تو آؤ نا بندہ توڑ جیل والی پولیس تک بندہ بڑی مشکل نال ویندا ہے۔ میاں والی جڑا روڈ ہے یہ ون وے موسا خیل تک لازمی ہے کیونکہ ٹریفک سب تو زیادہ اس روڈ پہ آ گئی ہے اور ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں جدی انتہا کو۔ لہذا ساری اپیل ہے
भाई इसमें मूसा ख्याल तई वन वे लाजमी की दवा रोड की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। नए पुल लगाने के लिए फेस्को को 1 करोड़ रुपए दिए गए। महकमा ज़राअत ने 90 लाख से सड़क किनारे दरख्तों की कटाई की और बकिया फंड से रोड पर पत्थर डाला गया, मगर मौजूदा हुकूमत ने ADP स्कीम में 4 लाख रुपए रखे हैं। इस रोड में 5 साल हो गए सर, इस रोड साठ की आधी पासी और ठेकेदार बिचन थी गए, सारी हुकूमत ही जानी कि बिचन थी गई। इतना एक्सीडेंट होते पे बेहिसाब है, हालांकि काट मरे या मेरे बचे ने आप टोए दे चवाई लग जाए। सारी रोड तक कुछ हल नहीं होता पिया भाई, कुछ हल हो वहाँ तो बात ही खैर आई। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले मंसूबों को नजरअंदाज करना मौजूदा हुकूमत का इंतकाम कहा जाए तो गलत न होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। उधर रहीमिया खान में साबिक हुकूमत के बड़े मंसूबे को ब्रेक लग गई है। खानपुर कैडेट कॉलेज मंसूबा तकमील के आखिरी मरहले में फंड्स की कमी का शिकार हो गया। 4 साल गुजरने के बावजूद पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका है। बच्चों को जदीद और बेहतरीन तालीम देने के लिए खानपुर कैडेट कॉलेज का बड़ा मंसूबा दिया गया। 60 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले मंसूबे की तामीर का आगाज 2017 में किया गया। साबका हुकूमत के जाने के बाद मंसूबे के फंड्स को भी ब्रेक लग गई। 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल होने वाला खानपुर कैडेट कॉलेज का मंसूबा 4 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। गुज़श्ता साल कॉलेज की तामीर के आखिरी फंड्स का भी इजरा कर दिया गया और जून में इसको मुकम्मल करके आगाज करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया था, मगर ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अब भी इसकी तकमील का आखिरी मरहला है। तब्दीली सरकार ने साबिक हुकूमत के मंसूबों के फंड्स रोक लिए हैं। नामुकम्मल इमारतों और तफरीही मकामात खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। गंदगी के ढेर लग चुके हैं। विहाड़ी में मॉडल बाजार का मंसूबा भी तजावुजात की नजर हो गया। आने वाले में गुज़श्ता हुकूमत के कई मंसूबे ज़ेरे इल्तवा, फंड्स ना मिलने की वजह से अकेडमी और पार्क की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। नामुकम्मल इमारतें और तफरीही मकामात खंडरात और गंदगी में बदल गए। शहरियों को मायूसी का सामना। गुज़श्ता हुकूमत ने जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंसूबा दिया था, हम बड़े खुश थे कि हम यहाँ पे ना एक पार्क बना रहे हैं जी, कि बहुत बड़ा इफ्तिताह हुआ था। उस वक्त के चेयरमैन मसूद मजीद साहब, MP निशाद खान डाहा साहब ने इसका इफ्तिताह किया, यहाँ पे तख्ती लगाई और बहुत लोगों को बड़े हम खुशी की लहर दौड़ी थी कि हमारे बच्चे इस पार्क में खेलेंगे और हम बड़ा जो है ना सैर व तफरी करेंगे, मगर हमें वो सैर व तफरी तो न मुयसर हो सकी। यहाँ गंदगी के ढेर जरूर हमें मिल रहे हैं। बहावल नगर में फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मेडिकल कॉलेज की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। 2013 में शुरू होने वाला मंसूबा 2021 में भी नामुकम्मल। मेडिकल कॉलेज का सिर्फ 30% काम मुकम्मल नहीं हो सका। ये मंसूबा नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में शुरू हुआ था, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो ये मंसूबा रुक गया है। कुछ काम हुआ है इनकी हुकूमत में, लेकिन ज्यादा काम 70% काम नवाज शरीफ ने खुद किया है। विहाड़ी में 2014 में शुरू होने वाला मॉडल बाजार का मंसूबा तजावुजात की नजर हो गया। 3 करोड़ की लागत से मंसूबा 2016 में मुकम्मल हुआ। हुकूमती और इंतजामी नाअहली के बायस मॉडल बाजार वीरान हो गया। सर ये साबका हुकूमत ने बनाया था और उस वक्त चल रहा था बहुत अच्छा, और जो अब मौजूदा हुकूमत चल रही है तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इधर तो बहुत हालात ख़राब हैं, 99 दुकानें हैं तकरीबन, कोई इनकी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। तब्दीली सरकार ने सियासी मुखालफत की वजह से साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट्स के फंड्स रोक लिए। नामुकम्मल इमारतें खंडर बन गईं। आगे बढ़े, आपको बताएं सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का दौरा किया। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल में नाकिस सफाई, तिब्बी सहूलियात की फराहमी की शिकायत और दीगर नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी किया। मार्कल सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान को अस्पताल के तमाम इंतजामात बारे तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब ने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज बच्चों के लवाहिकीन से बातचीत भी की और उनसे अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का दौरा। चिल्ड्रन अस्पताल में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा एहतजाज पर असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली निकाली और VC ऑफिस के सामने लेटकर एहतजाजी धरना दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान तलखलामी भी हुई। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा एहतजाज पर असातिज़ा ने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाज रैली निकाली है। असातिज़ा ने वाइस चांसलर ऑफिस के सामने लेट कर एहतजाजी धरना भी दिया। धरना खत्म कराने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया और एहतजाजी मुजाहिरीन में तलखलामी भी हुई है।
राजनपुर में मैप्को इंतजामिया और पुलिस तगड़े बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मौके पर गिरफ्तारी मुहिम शुरू कर दी गई है। क्रैकडाउन कोट मिठन और कोटला नसीर के इलाकों में किया गया। बिजली चोरी करने वालों की तारें और मीटर उतार लिए गए हैं। बिजली चोरी करने वाले मुल्जिमान मौका से फरार हो गए हैं। फरार होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। राजनपुर में मैप्को इंतजामिया और पुलिस तगड़े बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म हो गई है। बिजली चोरों के खिलाफ मौका पर गिरफ्तारी मुहिम शुरू कर दी गई है। क्रैकडाउन कोट मिठन और कोटला नसीर के इलाकों में किया गया। बिजली चोरी करने वालों की तारें और मीटर्स उतार लिए गए हैं। बिजली चोरी करने वाले मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। फरार होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्तान में डीजी एंटी करप्शन गोहर नफीस की खुली कचहरी। साइलिन की शिकायत पर डीजी एंटी करप्शन ने अहकाम जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफसरान को शोकोज नोटिस जारी कर दिया। सर्कल ऑफिसर मुल्तान अफसल महार को नाकिस तफ्तीश पर झाड़ फैला दी गई है। डायरेक्टर मुल्तान रमजान और एएसआई महबूबाबान मुअत्तल कर दिए गए। डेरा गाजी खान में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नात और हुस्न क़िरात और तकारीर के मुकाबला जात का सिलसिला जारी है। नात, हुस्न क़िरात और तकारीर के मुकाबलों में जिले के 30 मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया है। बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर बताएगा। डेरा गाजी खान में भी शान रहमतुल आलमीन के हवाले से तकारीब का सिलसिला जारी है। कम्प्रीहेंसिव स्कूल में डिस्ट्रिक्ट सतह के मुकाबला जात जारी हैं। नात के मुकाबला जात हो रहे हैं, किरात के मुकाबला जात जारी हैं। और इस पूरे प्रोग्राम के जो कन्वीनियर हैं अजीज़ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, तकारीब का सिलसिला जारी है, डिस्ट्रिक्ट सतह के आज मुकाबले हो रहे हैं, कितना बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डीजी खां का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट का कल से शुरू हुआ। वो प्रोग्राम जो था हुस्न किरत था, जिसके अंदर 30 तलबा ने हिस्सा लिया, यानी 30 स्कूलों ने। और उसमें पहली पोजीशन जिस बच्चे ने ली उनका नाम था असदुल्ला, और ये गवर्नमेंट सीटीआई स्कूल डीजी खां का तालिब इल्म था। और दूसरी पोजीशन नुमान हैदर गवर्नमेंट हाई स्कूल तमाची वाला। और इसी तरह तीसरी पोजीशन किरत के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल विलय वाले ने हासिल की। आज इस तकरीब का दूसरा दिन है, जिसके अंदर तकारीर और नात का हुस्न नात का मुकाबला किया जा रहा है। तकरीर में गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के अल्लाह डिता ने पहली पोजीशन हासिल की, अरियान खान ने दूसरी पोजीशन, हसनैन अली ने तीसरी पोजीशन, जबकि नात का प्रोग्राम सिलसिला जारी है। और मैं इस अक़दाम पर गवर्नमेंट पंजाब, बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब सरदार मोहम्मद उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ऐसन प्रोग्राम को ऐसन महीने के अंदर मुनक्किद करा के लोगों के दिल जीत लिए हैं। जी बिल्कुल, ऐसन प्रोग्राम जारी है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो जजेस हैं उनकी जानिब से भी नात जो मुकाबला हो रहा है, नाते मुकाबला हो रहा है, वो सुन रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जो डिसीजन है वो बाकायदा तौर के ऊपर लिया जाएगा। मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। आशिर, आपका शुक्रिया। उधर अलीपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर भर में स्टॉल सज गए। शहरी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत की खुशी मनाने के लिए अपने घरों पर लाइटिंग और मस्जिदों पर चिरागा के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। 12 रबीउल अव्वल की आमद है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए शहर भर में स्टॉल सज गए हैं। शहरी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत मनाने के लिए झंडियों, लाइटिंग और चिरागा के लिए खरीदारी करने में मसरूफ हैं। जबकि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में शहरी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि वो अपने घर की सजावट और मस्जिद पर चिरागा करने के लिए खरीदारी करने आए हैं। 12 रबीउल अव्वल आकाए दो जहां की विलादत बासादत का दिन है, जिसको वो मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। इसी खुशी में अपने और बच्चों के लिए बैजेस और झंडे भी लिए जा रहे हैं। बहावल नगर में डीपीओ जफर बुज़दार की प्राइस के साथ साथ एहतराम इंसानियत की भी मुनफरिद मिसाल। माजूर साइलिन के डीपीओ खुद अपने कमरे से बाहर आ गए। माजूर साइल की दरख्वास्त बरामदगी में आकर सुनी। डीपीओ का डीएसपी फोर्ट अब्बास को मासूर शख्स का मसला फौरी हल करने का हुक्म। कहा, दफातर में आने वाले साइलिन से इज्जत और एहतराम से पेश आया जाए। इंसानियत से प्यार और एहतराम करने से दिली सुकून मिलता है।
और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।